Hi everyone, so thank you so much for clicking this video. Once again I'm here, and in today's video I'm going to talk about why you are not able to speak in English language. Yes guys, in today's video I'm going to talk about it because so many learners are starting their journey, and when they start speaking in English language they find that they are not able to speak in English language. So what is the reason behind it? I'm going to talk about it, and I will give you some tips that will help to improve your English, that will help you to start speaking in English language. So if you are facing this problem, so this video is for you. So without any further ado, let's get into the video. So when I started my journey, so that time I was able to understand everything, right? Whatever was written in any book copy, wherever I was able to understand everything. But when it came to start speaking, I was not able to speak in English language. I was not able to speak even a single sentence from my mouth. Why these things was happening that time? Because I was focusing on understanding things. I had knowledge about understanding, right? I was able to understand everything before starting this journey. But why I was not able to speak in English language? Because main reason was that I didn't try to speak in English language that time. I was thinking that I have knowledge, and because of this knowledge I can speak in English language. मीन्स ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे पास नॉलेज अगर किसी चीज़ की है तो हमें कॉन्फिडेंट रहता है कि हम उस काम को कर लेंगे। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ जब मैं स्टार्ट की, तो उस टाइम पे नॉलेज थी इंग्लिश के बारे में कि कैन मतलब क्या होता है, इज़ेमार क्या है, टेंस क्या है, उस ये सब के बारे में नॉलेज थी उस टाइम पे। बट व्हेन इट केम टू स्टार्ट स्पीकिंग, जब बोलने की बारी आती थी तो उस टाइम पे मैं स्टक हो जाती थी। मुझे मालूम नहीं होता था कि सेंटेंस को कैसे बनाऊँ, और इसी बेस पर कि मुझे सब कुछ आता है, मेरे पास नॉलेज है, इसको आधार मानते हुए मैं जो है एक भी दिन ट्राई नहीं की इंग्लिश बोलने की। एंड इट वॉज माई बिग मिस्टेक दैट टाइम, बिकॉज ऑफ दैट आई टुक टू मच टाइम. And guys, I will suggest you, if you are doing the same thing, that you think that if you have knowledge about grammar, knowledge about English, you can understand everything. But when it comes to start speaking, and if you are not able to speak that time, means you are making the same mistake. आप भी वही गलती कर रहे हो जो मैं गलती की थी। आप बस फोकस कर रहे हो अंडरस्टैंडिंग पे, और आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज है तो आप बोल लोगे, राइट? तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि हमारे पास जो भी नॉलेज है, जब तक हम उसको यूज़ नहीं करेंगे डेली कॉन्वर्जेशन में, हम जब तक उस वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और लैंग्वेज मतलब बोलने की बात है, ये बोलना है, बोलने के लिए ही तो सीख रहे हैं इंग्लिश। तो जब तक आप बोलोगे नहीं, आप नहीं सीख सकते। तो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न, बिकॉज ऑफ दैट आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड आई कैन से दैट दिस इज़ योर रीज़न. इफ़ you are not able to speak in English language, whether you understand everything or not, if you are not able to speak in English language in spite of understanding everything, so this is the reason. Because you are focusing on an understanding, you are thinking that you have knowledge about English, so you can start speaking from anywhere. It will not work like this. If you want to speak in English language, so you will have to start from today onwards. Whatever knowledge you have, आपके पास जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को यूज़ करते हुए आपको स्टार्ट करनी होगी। अब कभी मत सोचिए कि मेरे पास तो ये नॉलेज है, जब बोलने की बारी आएगी तब बोलूँगी या फिर बोलूँगा। ऐसा आप करोगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे होंगे। क्योंकि जैसे कि होता है ना, एग्ज़ाम का टाइम आ रहता है, तो हम सोचते रहते हैं कि ये तो ईज़ी है, एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ लूँगा। और जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो उस टाइम पे लगता है कि काश ये मुझे पहले पढ़ लेना चाहिए था। उस टाइम पे वो डिफ़िकल्ट लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम पहले से सोच के बैठे रहते हैं कि ये हो जाएगा मुझसे, ये तो ईज़ी है। ऐसा सोच के हम बैठे रहते हैं और उस दिन का वेट करते हैं जब एग्ज़ाम का दिन आएगा, उस टाइम मैं पढ़ूँगा और पास हो जाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास नॉलेज है इंग्लिश की, तो उस नॉलेज को आप डेली एक्सप्रेस कीजिए, उस नॉलेज को डेली आप सीखते रहिए, डेली उस पर वर्क करते रहिए। वर्क ऑन दोज़ नॉलेज दैट यू हैव। डेली, ऑन द डेली बेसिस यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट? जो भी नॉलेज है आपके पास उस पर आप डेली काम कीजिए। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप समझ सकते हो इंग्लिश, तो जब बोलने की बारी आती है तो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आप उस अंडरस्टैंडिंग पर काम करते नहीं हो।
दिस इज़ द मेन रीज़न। एंड मैं सभी से कहना चाहूँगी जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं और जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनसे बस यही गुजारिश है कि आप अगर समझ सकते हो इंग्लिश, तो उसी समझ पर आपको काम करना है कि क्या होता है। टेंस के बारे में आपको समझ होगी ही, और ऑब्वियसली जो आपको होगी नॉलेज उसके बारे में, तो क्या करिए, टेंस 12 टेंस के 12 सेंटेंस बना लीजिए आप। उसी 12 सेंटेंस को एक वीडियो में रिकॉर्ड कीजिए, अपने से बोलिए, मतलब टंग ट्विस्ट कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, तभी तो आपको टंग जो है ट्विस्ट होगा वो इंग्लिश बोलने के लिए। इस तरह से आपको मेथड को अपनाना है। And if I talk about second thing that was holding me back when I was in this journey, means when I started, so that time I was just doing my watching videos practice। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं दिन भर वीडियोस देखती रहती थी, सुनती रहती थी, बट आई नेवर ट्राइड टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं की, और इसी वजह से मुझे बहुत टाइम लगा इंग्लिश को सीखने में, राइट। तो ये गलती आप कभी मत करिए। आप एक दिन में एक ही वीडियो देखिए, बट उस वीडियो से जो सीखते हो उसको आप एक्सप्रेस कीजिए अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज में जो भी नॉलेज आपके पास है इंग्लिश के बारे में, उसी नॉलेज के ऊपर काम करो। दोनों को दोनों काम एक साथ हो जाएगा। आप बोलने की कोशिश भी करोगे और जो नॉलेज है उसको एक्सप्रेस भी करोगे। तो इस तरह से आपको मेथड अपनाना होगा और काम करना होगा, तभी आप टंग को ट्विस्ट कर पाओगे और इंग्लिश बोलने की कोशिश कर पाओगे, शुरू कर पाओगे। धीरे धीरे करके आप एक दिन इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, देयर इज़ नो डाउट। बट यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। Do not wait for the right time, and mostly we wait for the right time when I will have knowledge about English, then I will start speaking. Wait for that time, and because of that we just waste our time and we do not start speaking in English language, and we find ourselves that we can understand but we cannot speak in English, right? So I hope that you got my point, what I wanted to say, and I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.